Hello, hello, class. Am I audible? Am I audible? Hello, class. Am I audible? Yes, sir. Okay. So good afternoon to all. And so previously we have discussed Unit 4, basically, in which we have discussed the basics of short linear antenna. Clear? That is also known as short dipole. Clear? And इसको हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं, शॉर्ट लीनियर एंटीना भी बोलते हैं. Clear? Now we will discuss the another thing, that is antenna array. Clear? Previously we have discussed these things. मैं एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया था. So if you see, we have discussed these things. Clear? We have discussed various field patterns. Clear? For different dipoles of length. Clear? And then we have discussed monopole, half wave dipole, current distribution in different linear antennas. Clear? ये सब डाइपोल एंटीना में हम लोगों ने डिस्कस किया था. हर्ट्जियन डाइपोल, हाफ वेव डाइपोल, क्वार्टर वेव मोनोपोल, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. नाउ इसके पहले हम लोगों ने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था. ये क्या होता है, रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है. ठीक है. फर्दर इसमें जो फील्ड पैटर्न्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. क्लियर? तो अभी हम लोग एंटीना एरे पढ़ने जा रहे हैं. एंटीना एरे होता क्या है ये हमने आपको बताया था. इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे थे लास्ट टर्म पे, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले होता क्या है, ये हम आपकी डेफिनेशन हमने बताई थी कि दिस इज एन एरे ऑफ रेडिएटर्स. जैसे कि मान लीजिए कोई एक हमारे पास एंटीना है, उसका रेडिएशन पैटर्न हमको इंक्रीज करना है, तो व्हाट वी विल डू, देन वी विल ट्राई टू इंप्रूव द इंक्रीज द लेंथ ऑफ दैट. क्लियर? सो if you increase the length of antenna, then it will just increase the cost as well as the size of antenna. Clear? It means if you want to limit the size of antenna, it means you need to uh, make some different type of arrangement. Clear? So in this particular array element, we just try to find a short antennas of multiple quantities. Clear? And that will be a bunch of antenna of small length. Clear? That will just do the same operation as you can do for increasing the length of an antenna. Clear? So this is an array or collection of radiators, that is also known as antenna, which will perform the same operation. Clear? So I'm just going to write the definition of this. So an array of radiators has a system of antennas. So you may also write it down. Which are similar, or non-similar, which are similar or non-similar, and either similarly either similarly oriented or differently oriented. Differently oriented. ठीक है. Array are used to increase directivity and gain. Arrays are used
टू इंक्रीज डायरेक्टिविटी एंड गेन, क्योंकि अगर डायरेक्टिविटी बढ़ेगा तो गेन भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इंक्रीज डायरेक्टिविटी एंड गेन, ठीक है, डायरेक्टिविटी एंड गेन, क्लियर। So this is exactly what is an array of radiators. Clear? So this is the definition. Now further we will move to the expression for resultant radiation pattern, ठीक है, of two element array. तो एक अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा for two element array, ठीक है। एक हेडिंग हम डाल देते हैं यहाँ पे, expression for resultant radiation expression for resultant radiation pattern of two element array, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एरे ऑफ एंटीना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसका एक्सप्रेशन जो आता है बेसिकली इट इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय ई आर मीन्स रेडिएशन पैटर्न, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, रेडिएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं, 2 EA cos पाई डी cos phi अपॉन लैम्डा प्लस अल्फा ई अपॉन 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द रेडिएशन पैटर्न। मैं एक एक टर्म बता रहा हूँ ये है क्या चीज, इससे डेरिवेशन नहीं करना है हमें, वी आर नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन पार्ट। कराने को तो हम करा सकते हैं डेरिवेशन, देखते हैं अगर इफ वी हैव टाइम, मैं बता दूंगा डेरिवेशन आपको। ओके ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, क्लियर। यहाँ पे डी क्या है, here d is equal to spacing between the antennas, spacing between the antennas, दो एंटीना जो हमारे होंगे एरेज उनके बीच की स्पेसिंग है, ठीक है। फाई क्या है, फाई इज योर एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द एरे, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा उससे आपको क्लियर होगा, एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द एरेज एंड लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जिस जिस पर्टिकुलर लाइन पे आपका ऑब्जर्वेशन है, एंड जो एक्सिस है एरे की उसके बीच का एंगल है, ठीक है। देन ई ए, व्हाट इज ई ए, ई ए आपका है फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एंटीना ए एलोन, फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, एक एंटीना हमने ए लिया है, एक एंटीना बी लिया है, ठीक है ना, एंटीना एरे हमारे पास जो है, तो एंटीना ए की वजह से जो हमारा फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज ए ई ए, केवल एंटीना ए की वजह से, ठीक है। लैम्डा क्या ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, ऑपरेटिंग वेवलेंथ, इसके बाद अल्फा ई क्या है, व्हाट इज अल्फा ई, अल्फा ई आपका है एक्साइटेशन फेज, एक्साइटेशन फेज, ठीक है। तो ये सारे आपके टर्म है,
फॉर्मूले में जो आपका दिख रहा है रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न का 2 एलिमेंट एरे में, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग इफ वी सॉल्व दिस, क्लियर, सो वी कैन डू दिस ऑल्सो। मैं इसको करके बता दे रहा हूँ आपको कैसे ये सॉल्व होगा, इसको प्रूफ करा देते हैं हम आपको, ठीक है। जस्ट वेट। So just we will do the proof of this, ठीक है। अगर हम प्रूफ को देखें इसमें, देन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ओके। So now let us consider two antennas that will be placed along a straight line and separated by a distance d meters, ठीक है। तो पहले तो इसमें स्टेटमेंट एक लिख लीजिए, let two antennas to be placed along a straight line separated by a distance d meter, ठीक है। देखिए डायग्राम अगर हम बनाएं तो वी हैव द डायग्राम लाइक दिस, दिस इज ए प्लेन, ठीक है। एंड इसको हम एक्सिस ऑफ एरे भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ एरे, ठीक है। एक्सिस ऑफ एरे, you may write it, clear. So we have just taken a 2 points, one point is this, another point is this, clear. And from this point, ये 2 पॉइंट है हमारे ए और बी, ठीक है। बेसिकली 2 एरेज हमारे पास हैं, यहाँ पे कह सकते हैं आप, वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है। एक पॉइंट हमने पी लिया है यहाँ पे, वेयर वी हेयर द ऑब्जर्वर इज देयर, वेयर द ऑब्जर्वर इज देयर, क्लियर। सो इट विल ऑब्जर्व फ्रॉम देयर एंड rather you may take it over here, यहाँ पे ले लेते हैं हम, this is the point P where observer is there, clear. So kindly meet with this point, okay. So what we will do, this we will meet this point, clear. So इस point को meet कर रहे हैं, देखिए एक मिनट, एक हमने ये पॉइंट मीट कराया इस पॉइंट से ए से, और दूसरा हम लोग मीट कराएंगे बी पॉइंट से, क्लियर। तो इस तरीके से हमने मीट कराया, ये एंगल हमारा है फाई, दिस एंगल इज फाई, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे करंट एम्पलीट्यूड, दिस इज योर करंट एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द करंट एम्पलीट्यूड। एक एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, एक एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे, दिस इज योर करंट एम्पलीट्यूड, क्लियर। ये दोनों ही आपके करंट एम्पलीट्यूड हैं, ठीक है, दिस एंड दिस, क्लियर। दिस इज, अब इसका अगर हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी निकालते हैं, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी,
ठीक है, दिस इज रे बी एंड दिस इज रे ए, दिस इज योर रे ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ डायग्राम बनेगा। If you find the component, horizontal component will be d cos phi and vertical component will be d sin phi. Clear? So this is your two element uniform array. This figure is two element, दो एलिमेंट कौन से हैं? एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ठीक है ना? टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे। ठीक है, नाउ इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो क्योंकि P पॉइंट जो है बहुत ही फार अवे है फ्रॉम द एरेज, so we can say that ray RA and ray A and ray B that will be assumed to be parallel almost. Clear? यहाँ आपको पैरेलल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये P पॉइंट इतनी दूरी पे है, ऑब्जर्वर इज ए फार अवे फ्रॉम दीज टू A and B पॉइंट, so you can say the ray that is just meeting to this point P from A and B will almost appears to be parallel. Clear? So if the point P is far away from the array, comma, ray A and B, ray A and ray B can be assumed to be parallel, can be assumed to be parallel. ठीक है, so if you find the path difference between two array, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे पाथ्स, दो रे कौन सी हैं? ये और ये। दिस इज द पाथ डिफरेंस। क्लियर? दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, कैसे आएगा पाथ डिफरेंस बताइए क्लास? हाउ कैन यू फाइंड द पाथ डिफरेंस? व्हाट विल बी आर ए माइनस आर बी? दिस इज योर आर ए एंड दिस इज योर आर बी। हाउ कैन यू फाइंड द पाथ डिफरेंस आर ए माइनस आर बी? पाथ का डिफरेंस मतलब चूंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है और इसको इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है रे को पीछे से। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इस पॉइंट से इसको टच कराएंगे तो यहाँ कहीं मीट करेगा, तो ये दिस इज योर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो कितना आएगा पाथ डिफरेंस? दैट इज आर ए माइनस आर बी। हेलो, आवाज आ रही बेटा सभी को? हेलो, आ रही है सर आवाज। आर ए माइनस आर बी क्या होगा बेटा? बताइए। आर ए माइनस आर बी विल बी डी कॉस फाइव होगा, डी कॉस फाइव। दिस इज योर डी, दिस इज योर डी। क्लियर? एंड यू विल जस्ट सी दिस। क्लियर? इसको आप देख रहे हैं, दिस इज योर एंगल कॉस फाइव, दैट इज डी कॉस फाइव। क्लियर? सो आर ए माइनस आर बी विल बी डी कॉस फाइव, दैट इज बेस अपॉन hypotenuse. Clear? So d base is your what? Ra minus Rb, and d is your this. This is your d. Clear? And angle is phi. So Ra minus Rb upon d will be cos phi. Clear? So Ra minus Rb is equal to d cos phi. So this is equation number 1. That is the path difference between two rays. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
RB is equal to RA minus D cos phi. We can write it as also. Clear? So this exact expression must be used in the phase term of the field. Clear? जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो RA और RB अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, लेकिन अगर फेज की बात करेंगे तो फेज में फेज एंगल इंक्लूड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि हमने बताया RA RB ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, सो वी कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली RA इज इक्वल टू RB। क्लियर? ठीक है। सो लेकिन जब फेज को कंसीडर करेंगे तो ये भी आपका पूरा आएगा cos फाई वाला टर्म। ठीक है। सो इन मैग्नीट्यूड टर्म ऑफ द फील्ड आप लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड टर्म ऑफ द फील्ड योर we can use the approximation. We can use the approximation. Approximation क्या होगा? RA इक्वल टू लगभग RE RB के बराबर। ठीक है, दिस इज योर अप्रोक्सीमेशन। सो फेज डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है? ये तो पाथ डिफरेंस था ऊपर। रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा? हेलो, फेज डिफरेंस क्या होगा? कौन बताएगा? फेज डिफरेंस विल बी, फेज डिफरेंस क्या होगा? दैट विल बी व्हाट? अल्फा डी। Alpha D is the phase difference. Just we have taken it. Clear? So this will be what? इसको हम लोग एक्साइटेशन, या इसको हम लोग अल्फा डी को हम जो फेज डिफरेंस बोल रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू RA एंड RB. सो अल्फा डी विल बी व्हाट? क्या फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का? दैट विल बी वेव नंबर मल्टीप्लाइड विथ पाथ डिफरेंस। वेव नंबर मल्टीप्लाइड विथ पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो वेव नंबर हमारा क्या है? वेव नंबर इज योर बीटा. Beta we have taken as wave number. Clear? And path difference is your D cos phi. RA minus RB क्या? D cos phi है, तो this is your path difference. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? बीटा D cos phi. ठीक है, सो ये आपका आ गया फेज डिफरेंस. दिस इज योर फेज डिफरेंस, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ व्हाट इज आवर टास्क? अगर हमारा एक्साइटेशन, जो मेंटीना को एक्साइटेशन फेज दे रहा है, दैट इज सपोज अल्फा ई, सो टोटल फेज डिफरेंस विल बी अल्फा ई इज आल्सो एडेड. हमने एक एक्साइटेशन फेज भी लिया है ना, जहां से हम इनपुट पे दे रहे हैं फेज, जो हमारा डिफरेंस है एक्साइटेशन फेज. क्लियर? सो इफ एक फेज डिफरेंस है जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है जब रे प्रोपागेट कर रही, और एक एक्साइटेशन फेज होता है जो इनपुट से दिया जाता है. ठीक है, so total phase जो होगा difference, that will be the excitation phase plus the phase difference. So if the excitation phase difference is alpha e, phase difference is alpha e, so total phase difference is, so total phase difference is, total phase difference क्या आ जाएगा? That will be represented by psi. Psi is equal to beta d cos phi plus alpha e.
दिस इज द टोटल फेज डिफरेंस। अब देखिए हमने क्या किया, बीटा डी कॉस फाई हमारा अल्फा डी था, तो अल्फा डी में हमने अल्फा अल्फा ई जोड़ दिया। अल्फा इज योर एक्साइटेशन फेज डिफरेंस एंड दिस इज योर नॉर्मल फेज डिफरेंस जो रेस के बीच में है, तो दोनों ऐड हो गया तो हमें टोटल फेज डिफरेंस आई मिल गया। अल्फा ई क्या है, फेज एंगल है बाय विच योर करंट आई बी इन द एंटीना बी लीड्स द करंट आई ए इन द एंटीना ए। ठीक है, क्लियर। जो हमारी आई बी है, आई बी जो कि आपके रे बी में फ्लो कर रही है, ठीक है, रे बी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें जो करंट है वो लीड कर रही है बाई द करंट ए, दैट इज आई ए। ठीक है, तो ये हमारा फेज एंगल है, दैट इज अल्फा ई। सो यू कैन सी योर, लिख सकते हैं हेयर अल्फा ई इज द फेज डिफरेंस, अल्फा ई इज द फेज डिफरेंस, या फेज एंगल लिख सकते हैं, नॉट डिफरेंस। दिस इज योर फेज एंगल बाय विच द करंट आई बी, current IB in antenna B leads the current IA in antenna A, leads the current IA in antenna A। ठीक है, सो रिजल्टेंट फील्ड अगर हम निकालें फेजर में, सो क्या आएगा, जब हम ये मान के चलें दोनों एंटीना को हमने यूनिफॉर्मली एक्साइटेड किया हुआ है, सो द रिजल्टेंट फील्ड इन फेजर form when two antennas are uniformly excited is given by क्या होगा, ER is equal to, this is your resultant phase, ठीक है, so ER is equal to EA ब्रैकेट में 1 प्लस E की पावर J psi, ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, दिस इज योर रिजल्टेंट फील्ड, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए, यहां तक 3 हुआ था, दिस इज योर फोर्थ, दिस वाज योर फोर्थ एंड दिस वाज योर फिफ्थ। क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड क्या है, टोटल फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। फील्ड स्ट्रेंथ की बात हम करेंगे तो दोनों की वजह से बराबर है, चाहे वो रे ए हो चाहे बी हो। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड of total field strength when IA is equal to IB। ठीक है, अगर IA हमारा IB के बराबर है, then what will be the total field strength, means ER is equal to E is equal to mod of EA 1 plus E की पावर J psi। ठीक है, अब अगर हम मॉड सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म का, तो E की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, EA ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस साई प्लस
जे साइन साई, ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्लियर, दैट विल बी e की पावर जे साई। सो फर्दर आप लिखेंगे तो दिस विल गिव यू ई ए, अब इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा बताइए, बिकॉज यहाँ मैग्नीट्यूड लगा हुआ है ना, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म इसका क्या आएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ दिस, अंडर रूट, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, तो रियल पार्ट 1 + cos फाई है, cos साई है, तो 1 + cos साई का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर साई। आ जाएगा ये, बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ए ब्रैकेट में अंडर रूट, अब 1 + cos साई का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a² + b² + 2ab, ये आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2b² + 2ab, तो ये हो जाएगा 1 + cos² साई प्लस 2 cos साई, आएगा, ठीक है, 2 cos साई और प्लस साइन स्क्वायर साई, साइन स्क्वायर साई भी तो है साथ में, ठीक है। अब cos² साई प्लस साइन स्क्वायर साई मिलके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे ना, cos² साई प्लस साइन स्क्वायर साई विल बी 1, सो इट विल गिव यू ई ए अंडर रूट, ये 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, cos² साई प्लस साइन स्क्वायर साई विल बी 1 प्लस 2 cos साई, ठीक है, तो दिस विल गिव यू व्हाट, ई ए अंडर रूट 2 + 2 cos साई, ठीक है, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ई ए अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 + cos साई आ जाएगा, ठीक है, और 1 + cos साई की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा के फॉर्म में देखें तो cos 2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 cos² थीटा -1, होता है नहीं होता है, हेलो हेलो, आवाज आ रही सभी को, मैं पूछ रहा यस हूँ सर। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 साई इज 2 cos² साई -1, होता है नहीं होता है, तो अगर मैं इसको cos 2 साई की जगह पे अगर हम cos साई यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos², जब इधर 2 हटा दिए तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, तो 2 cos² साई/2 -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब इसको अगर हम -1 को इधर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + cos साई, 1 को हम इधर ले आए, तो 1 + cos साई की वैल्यू क्या हो गई, 2 cos² साई/2 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² साई/2 लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं ना, और ये वैल्यू हम कहाँ उठा के पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, सो यू विल गेट व्हाट, तो आपको मिल जाएगा E = ई ए, ये आपका E चल रहा था, E = ई ए अंडर रूट 2 × 2 cos² साई/2, ठीक है, और 2 × 2 = 4, तो यहाँ से आपका 2 कॉमन निकल आएगा, तो मीन्स 2 ई ए, और cos² साई/2 विल बी cos साई/2, तो ये cos साई/2 हो जाएगा, तो 2 ई ए cos साई/2 आ गया, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ E, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ई ए cos साई/2 इज व्हाट, साई/2 की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए साई क्या था फोर्थ इक्वेशन देखिए, साई था βd cos φ + α, दैट इज द टोटल फेज,
ठीक है, तो साई बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा डी बाई 2 कॉस फाई प्लस अल्फा ई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा साई, ये साई बाई 2 कॉस साई बाई 2 की वैल्यू, साई बाई 2 की वैल्यू हम लोग रख देंगे क्या, बीटा डी कॉस फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 प्लस एल्फा ई बाई 2। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? इसको मैं ब्रैकेट थोड़ा और पास कर देता हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2EA कॉस बीटा, बीटा बाई जो 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा इज व्हाट, बीटा क्या लिया था हमने, बीटा हमने क्या लिया था, बीटा इज योर वेव नंबर, और वेव नंबर को हम क्या, वेव नंबर इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इफ यू दिस सी, तो बीटा आपका 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो हम बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं, वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी कॉस फाइव बाई 2 प्लस एल्फा ई बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ई क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 2EA कॉस ब्रैकेट में पाई बाई या पाई डी कॉस फाई बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2, यही मिलेगा, बताइए क्यों बेटा, यही मिलेगा। तो देखिए प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया नहीं हो गया, 2 एलिमेंट एरे के लिए जो हमारा ई की वैल्यू है, बताइए। देखिए यही हम लोग को निकालना था, पीछे आइए देखिए, ये हमने यहीं से तो लिया था, ई आर इज इक्वल टू 2EA कॉस फाइव फाइव डी कॉस फाइव बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2। प्रूव हो गया नहीं हो गया, 2 एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे के लिए। देखिए, हेलो, यस सर। प्रूव हो गया ना। तो ये हमारा हो गया फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू 2 एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे। ठीक है, दिस इज योर रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न ड्यू टू 2 एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे, या 2 एलिमेंट एरे बोलेंगे। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म एरे, 2 एलिमेंट एरे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग यूनिफॉर्म लीनियर एरे के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर एरे के लिए, कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म लीनियर एरे है तो उस केस में हमारा रेडिएशन पैटर्न क्या निकल के आएगा। अभी हम लोग लीनियर एरे के लिए पढ़े थे, अब यूनिफॉर्म लीनियर एरे के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो है, इसको हम लोग जनरली रेयरली यूज करते हैं, जो भी हमने हम लोग आपको बताया है। ठीक है, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग कई सारे एरेज यूज करते हैं। ठीक है ना, मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड टू गेट हाई डायरेक्टिविटी एंड गेन। ये तो अभी हमने 2 एलिमेंट एरे बताया है, बट वी यूज नंबर ऑफ एरेज, ठीक है, टू अचीव द high directivity and gain. Clear? So that's why we are going to the next part. Okay.
Okay, meeting time in less than 1 minute, so you all are requested to kindly rejoin again. Okay. Now we will talk about uniform linear arrays.